اس کا 28واں باب اور اس کی 6 آیت خدا کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے مقدس کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں سے جو آیت مبارکہ آپ سب نے سنی ہے، ہر سال کئی بار ہم ان آیت مبارکہ کو سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بات دوبارہ سننے کو ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو ہم سب اس بات سے واقف تو ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ آج سے 3 دن پہلے ہم نے مسیح خدا کے 7 صلیبی کلمات کو سنا، اور اس سے پہلے ہم نے کھجوری اتوار کو منایا، اس کے بعد عشاء ربانی کی اور مبارک جمعے پر 7 صلیبی کلمات سنے، اور آج کا دن جو ہے وہ دن جو بڑا ہی فتح مندی کا دن ہے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور جس بات کا دعویٰ کیا اس نے وہ کر کے بھی دکھایا، کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے شاگردوں سے یہ بات کہی تھی کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگار انسانوں کے حوالے کیا جائے، مصلوب کیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو جب یہ بات ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، اور شاگردوں کو بھی مسیح خداوند نے فیس ٹو فیس یہ بات بیان کی اور بتایا انہیں کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو پھر بھی شاگردوں کی زندگی پر آپ غور کریں کہ وہ شاگرد جو بے دل ہو چکے تھے، وہ شاگرد جو حکومت سے ڈر رہے تھے اور شرع کے عالموں سے ڈر رہے تھے، جنہوں نے مسیح خداوند کو مصلوب کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مصلوب ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں پہلے سے ہی کلام خدا میں لکھی گئی تھی۔ جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو نبیوں کے صحائف میں یہ باتیں درج تھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی جان کو قربان کریں گے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث بنیں گے۔ تو میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اسے مصلوب کیا تھا بے شمار معجزات کیے۔ انہی کے سامنے لازر کو زندہ کیا، انہی کے سامنے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، انہی کے سامنے نائن چہر کی بیوہ کے لڑکے کو زندہ کیا، انہی کے سامنے 38 برس کے بیمار آدمی کو شفا دی، انہی کے سامنے یسوع نے راہ کے کنارے پر جو اندھا بیٹھا تھا اسے آنکھیں دی۔ جب یہ تمام معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یسوع کا چرچا سنا، تو پھر وہ یسوع کے خلاف اور زیادہ منصوبے بنانے لگے۔ کیوں منصوبے بنانے لگے؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف سفیدی پھری قبریں تھی۔ یسوع نے یہ بات بیان کی کہ اے سفیدی پھری قبروں۔ اب یسوع یہ باتیں کنہیں کہہ رہا ہے؟ وہ جو شرع کے عالم تھے، وہ جو کلام کی منادی کرتے تھے،
اب ان میں بے شمار ایسی کمیاں پائی جاتی تھی جن سے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی واقف تھے اور کوئی دوسرے انسان نہیں. کیونکہ یسوع کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ انسان کے دلوں اور گردوں کو جاننے کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا منصوبے ہیں. یسوع اس وقت کے بارے میں بھی جانتا تھا کہ جب ہیکل میں کھڑے ہو کر یسایا نبی کا صحیفہ کھولا گیا اور اس نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا، بلکہ یقین کرنا تو دور کی بات، اسے دھکے مار کر ہیکل سے باہر نکال دیا گیا. اس کی تعلیم کو رد کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہیں مسیح خداوند کے ماننے والے، وہ یسوع کی گواہی اسی طرح دیتے ہیں جس طرح ہم آج جلوس کی صورت میں گاتے آئے، ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا. یہ ایک بڑی گواہی جو دوسرے لوگوں کے لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح آج کے دن موت اور قبر پر فتح پا کر ہمیں مکمل نجات دیتے ہیں. تو یسوع مسیح صرف نجات کا کام ہی نہیں کرتے، یسوع مسیح اور بھی بے شمار کام کرتے ہیں ہمارے لیے. صرف نجات کا کام ہی نہیں کیا، صرف ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں دی، بلکہ ہمارے لیے ہر وقت فکر مند بھی ہیں. اور ان کا یہ وعدہ بھی ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو میرے عزیزوں، ہمیں خداوند پر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی ہم بے دل نہ ہوں، کیونکہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ کا برا جو بے عیب برا تھا وہ قربان کیا گیا ہے، جو میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح ہے. تو یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں. اس جیسا آپ کو اس دنیا میں اور نہیں ملے گا. ہم بے شمار دنیا میں ریسرچ کر لیں، آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کر لیں، آپ کہیں بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو یسوع جیسا مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہیں بھی یسوع جیسا ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ یسوع جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی تھا جو خدا تعالیٰ نے کیا کیا، دنیا کے لیے قربان کیا. یوحنا 3:16 سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے، اس لیے اس جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. اور ایک بات یاد رکھیں، ہم یسوع کے جنم دن کو بھی مناتے ہیں اور ہم اس کے جس دن وہ قبر میں گئے اس دن کو بھی منا رہے ہیں، اور ہم اس کے جی اٹھنے کی بھی خوشی کو منا رہے ہیں جو آج تک مر کے کوئی بھی جی نہیں اٹھا. تو یسوع مسیح واحد وہ ہستی ہے جس کی پیدا ہونے کی بھی خوشی منائی جا رہی ہے اور مرنے کی بھی خوشی منائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری نجات کے لیے مرا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو میرے عزیزوں، یسوع جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو کلام خدا ہمیں بے شمار شہادتیں دیتا ہے. الوہیت میں یسوع جیسا آپ کو کوئی نظر نہیں آنے والا. انسانی اعتبار میں یسوع جیسا آپ کو کوئی بھی نظر آنے والا نہیں ہے. معجزات میں آپ کو یسوع جیسا کوئی بھی نظر آنے والا نہیں ہے، اور مخلوقات میں آپ کو کوئی بھی یسوع جیسا نظر آنے والا نہیں ہے. مکاشفہ میں
हिकमत से भरा हुआ आपको यीशु जैसा नजर आने वाला कोई नजर नहीं आएगा दूसरा। वाहिद यीशु ही वो हस्ती है जो 12 साल की उम्र में हैकल में शरा के आलमों के साथ जो है खुदा ताला के कलाम की बातें करते और वो एक दूसरे से सवाल करते, इसने कहां से ये कलाम सीखा। यीशु जैसा हमें कोई और दूसरा नजर आता है? नहीं नजर आता। निजात देने में हमें यीशु जैसा कोई भी दूसरा नजर नहीं आता। तो शिफायत करने में भी यीशु जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आसमान पर बैठकर खुदा ताला की दाहिनी तरफ वो हमारी शिफायत कर रहा है कि ऐ बाप, मैंने इस बेटी के लिए भी अपनी जान कुर्बान की है। ऐ बाप, मैंने अपना कीमती लहू इसके लिए भी बहाया है। ऐ बाप, मैंने इन तमाम इंसानों के लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना और बेशुमार दर्द सहा। वो हमारी शिफायत करता है। उसे हर वक्त हमारी फिक्र है कि हम हलाकत की तरफ ना जाएं बल्कि जिंदगी की तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास जा नहीं सकता। तो किसी और ने ऐसा दावा किया कि कोई मेरे वसीला के बगैर आपको बाप के पास ले जाए, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो मेरे अजीजों, और बेशुमार बातें हैं कलामे खुदा की। कदूसियत में आपको यीशु जैसा कोई भी नहीं मिलने वाला, और अजीम दोस्ती में आपको यीशु जैसा कोई भी नहीं मिलने वाला, और बिशारत देने में भी हमें यीशु जैसा कोई भी मिलने वाला नहीं। और क्योंकि उसने एक शख्स को भी बिशारत देना, खुशखबरी सुनाना अहम समझा। आज बेशुमार ऐसे लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि 50, 100 या 200 या 500 लोग अगर बैठे होंगे तो मैं वहां पर जाकर कलाम बयान करूंगा। इससे अगर कम क्राउड होगा तो हम कन्वेंशन भी करने वाले नहीं है। लेकिन देखें, बादशाहों का बादशाह, दुनिया का मालिक, जो दुनिया के लिए ही आया, आसमान छोड़कर हमारे दरमियान आया, और उसने एक एक जान के पास जाकर खुशखबरी का पैगाम सुनाया और उसे कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का चश्मा मैं हूं, जो कोई मुझसे पीता है कभी प्यासा ना रहेगा। तो ये जो दावे यीशु ने किए, वाकई उसने ये दावे पूरे भी किए। उसने कहा अगर मैं गुनाहगार इंसानों के हवाले किया जाऊंगा, वो मुझे मसलूब करेंगे, तो ऐसा हुआ। उसने कहा मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, तो ऐसा हुआ। उसने कहा मैं चाहता हूं और चाहकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो अगर उसने ये बात कही है तो ये भी पूरा एक दिन जरूर होगा। और उसने कहा मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ऐसा दावा करने वाला आपको इस दुनिया में कहीं और मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है जिसने ये बात कही, और जिंदगी देने वाला वो ही है और आराम देने वाला भी वो ही है। जिसने लाजर को आराम दिया वो आपको भी एक दिन जरूर आराम देगा। उसने जो बात कही है वो वादों का सच्चा है। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें कभी भी नहीं टल सकती। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो मेरे अजीजों, देखें यीशु मसीह हमारे लिए कितना फिक्रमंद था। आज बड़े अफसोस के साथ हमें ये बातें कहने भी पड़ती हैं और देखने को भी मिलता है कि बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं
जो यीशु मसीह से बहुत दूर है अब तक। हम सिर्फ कई बार फर्जी तौर पर यह समझते हैं कि इबादत में जाना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ फर्जी तौर पर यह समझते हैं कि हम कलाम पढ़ लें, तो कई बार लोग पढ़ते ही जाते हैं और फर्जी तौर पर इबादत में बैठते हैं, ईमानी तौर पर नहीं बैठते, फिर भी उनकी जिंदगी आप देखें कभी भी तब्दील हो नहीं सकती। आज हम मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करने लगे हैं और कर रहे हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। अफसोस ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी खुदा से दूर ही हैं। जाहिर करना कि मैं खुदा की हजूरी में बैठा हुआ हूं, लेकिन यही काफी नहीं है हमारे लिए। सिर्फ जाहिर करना दूसरों को, बल्कि हकीकी तौर पर आप खुदावंद यीशु मसीह के हजूर आकर बैठे और उसके नाम को जलाल दे और उसका इस बात के लिए शुक्र किया करें कि उसने अपना कीमती लहू जो है आपके लिए बहाया है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह वादों का सच्चा है। वो पहले भी आपके लिए फिक्रमंद था, जान देने से पहले भी, और आज भी वो आपके लिए फिक्रमंद है और हर वक्त आपकी फिक्र उसे लगी रहती है कि ये मेरी भेड़ें हैं। अगर कोई भेड़ खो जाती है तो उसके लिए यीशु बड़ा फिक्रमंद होता है। वो चाहता है कि वो भेड़ जो है कहीं दूर और ना जाए, उसके करीब हमेशा रहे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह उसे और ज्यादा बरकत से नवाजे और ज्यादा उसे ब्लेस करे। तो मेरे अजीजों, ये खुशखबरी का पैगाम जो आज पढ़ा गया है कि फरिश्ता कहता है उन औरतों से जो यीशु के लिए कब्र पर गई थी, जो यीशु की सलीब के पास हमें नजर आती हैं, वही औरतें सबसे पहले कब्र पर जाती हैं और फरिश्ता उन्हें कहता है कि तुम जिसे ढूंढती हो वो यहां पर नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। फरिश्ते ने भी ये बात उन्हें दोबारा याद करवाई कि उसने तुम्हें कहा था मैं जी उठूंगा। तो उन औरतों ने क्या किया? जाकर भाइयों को खबर दी और उन्हें कहा कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, उस्ताद की कब्र खाली है, रब्बी की कब्र खाली है, वहां पर उसका बदन नहीं है। तो शागिर्द कई बार पहले भी घबरा चुके थे। सोचा होगा, इंसानी सोच है, हो सकता है कि कोई कब्र से चुरा कर ले गया हो। कब्र पर तो पहरा भी लगा हुआ था, क्योंकि उस दौर के जो लोग थे जो यीशु के खिलाफ थे, उन्होंने हुकूमत से दरखास्त की कि इसकी कब्र पर पहरा लगा दिया जाए ताकि कोई आकर इसकी लाश यहां से चुरा ना ले जाए। तो देखें, अगर पहरा लगा हुआ था कब्र पर, पत्थर, बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था कब्र पर, तो फिर भी यीशु वहां से जी उठा। यीशु की ऐसी कुदरत है कि कोई पहरा, कोई दीवार, कोई ताकत, कोई हुकूमत उसे रोक नहीं सकी। वो जी उठा और जाकर अपने शागिर्दों पर नाजिल हुआ, दोबारा जाहिर हुआ, और तोमा तो ऐसे सवाल कर रहा था कि मैं तो उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उसे छूकर ना देख लूं। तो याद रखें कि जिस जगह पर वो मौजूद थे, शागिर्दों पर बड़ी दहशत छाई हुई थी। हो सकता है उनके जहन में यह भी ख्याल आता हो कि औरतों ने आकर कहा है कि यीशु की कब्र खाली है, अब हुकूमत हमारे पीछे और ज्यादा लग जाएगी,
अब वो लोग जो है हमारे पीछे और ज्यादा लग जाएंगे कि कौन उठाकर ले गया इसकी लाश को। शागिर्दों पर बड़ी दहशत छाई हुई थी और उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे। यीशु की कुदरत देखे कि यीशु उनके दरमियान आ मौजूद हुआ और उसे कहता है तू मुझे छू कर देख, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। रूह के गोश्त और हड्डी कभी नहीं होती, रूह को कोई छू नहीं सकता। तू मुझे छू कर देख। तूने क्यों यकीन नहीं किया? मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आप लोग यीशु को जानते हैं, आप लोगों ने यीशु को देखा है अपनी आंखों से, तो आपके लिए ये बात है। यीशु ने कहा मुबारक है वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाए। हम ईमान रखते हैं कि यीशु पैदा हुआ कुंवारी मरियम से। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा है, वो असली बेटा है। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब उठाता है और मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात पर ईमान नहीं रखते। हमने कुछ नहीं देखा अपनी आंखों से ऐसा, लेकिन फिर भी हम ईमान रखते हैं क्योंकि हम उसकी कुदरत से कई जगहों पर वाकिफ हो चुके हैं। कहीं ना कहीं यीशु की कुदरत ने आपकी जिंदगी में काम किया होगा, कहीं ना कहीं यीशु की कुदरत ने आपकी जिंदगी में मौजूदा किया होगा। तो मेरे अजीजों, हमारा ईमान है कि आज के दिन यीशु मसीह मौत पर और कब्र पर फतह पाते हैं और हम सब उसके नाम की गवाही देते हैं लोगों को कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो हैप्पी ईस्टर कहते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको सिर्फ ये अल्फाज का ही पता है कि आज इनकी ईस्टर वाली ईद है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका क्या मकसद है। अगर हम लोगों को ये कहें कि आज के दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज हमारी ये ईद है, या ये कहें कि ईद क़यामत अल मसीह हम मनाते हैं कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना, तो फिर ये एक बहुत बड़ी लोगों के लिए गवाही होगी। उनके सामने आप गवाही दे रहे हैं कि मैं इस दिन को मना रहा हूं। तो जब आप ऐसा करेंगे आपकी जिंदगी से खुदा और ज्यादा खुश होगा, आपकी जिंदगी से खुदा और ज्यादा खुश होकर आपको और ज्यादा बढ़ाएगा और बेशुमार बरकत आपको अता करेगा। सो आज जितनी भी खुदा के कलाम में से बातें शेयर की गई हैं, आप इन बातों को याद रखें और हमेशा यीशु की गवाही देने के लिए अपने आप को तैयार रखा करें। जहां कहीं भी आपको मौका मिले आप उसके नाम की गवाही दिया करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह और बेशुमार लोगों की जिंदगी में काम करे। जो लोग आपकी जिंदगी से गवाही को सुनते हैं, आपकी जुबान से दूसरे लोग जब गवाही को सुनेंगे, यकीनन एक न एक दिन इस पर